in CBSE sample paper, you have already seen type of error has been asked. That is, which type of error it is. It is name error or type error or index error or syntax error, runtime error, logical error. So today we will do this exception handling in Python. Means if there is error, then how to handle those errors. So exception handling in Python. So all the now quotation is given in NCERT book in each chapter. I will read out the quotation also. I like my code to be elegant and efficient. The logic should be straightforward to make it hard for bugs to hide. The dependencies minimal to ease maintenance, error handling, complete according to an articulated strategy, and performance close to optimal so as not to tempt people to make the code messy with unprincipled optimization. Clean code does one thing well. So your target will be error-free coding. Now for that, what we have to do? Now in this chapter, you will go through syntax error, exceptions, built-in exceptions, raising exceptions, handling exceptions, and finally clause. So all these things we will do. Now, introduction. Sometimes while executing a Python program, the program does not execute at all, or the program executes but generates unexpected output or behaves abnormally. These occur when there are syntax errors, runtime errors, or logical errors in the code. In Python, exceptions are errors that get triggered automatically. However, exceptions can be forcefully triggered and handled through program code. In this chapter, we will learn about exception handling in Python programs. So, how to handle the exceptions or the errors which can be done by anyone. It may be the data is entered by the user of your program, they are making the mistakes, or you are making the mistakes in typing the syntax. Now, three type of errors mainly you have seen: syntax error, runtime error, and logical error. Syntax errors are detected when we have not followed the rules of the particular programming language while writing a program. These errors are also known as parsing errors. On encountering a syntax error, the interpreter does not execute the program unless we rectify the errors, save and रीरन द प्रोग्राम. ठीक है, तो जब हम टाइपिंग मीन्स जो रूल होता है कोई भी प्रोग्राम को लिखने का, उसमें जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उसमें वो सिंटैक्स एरर कंपाइलर दिखाएगा. जब तक तुम उस एरर को रेक्टिफाई नहीं करोगे, फिर से सेव करके रीरन नहीं करोगे, तो तब तक वो रन नहीं होगा. When a syntax error is encountered while working in shell mode, Python displays the name of the error and a small description about the error as shown in figure. जब एरर डिस्प्ले होता है तो उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है किस टाइप का एरर है. तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है सिंटैक्स एरर लिखा हुआ है. ठीक है, क्या मिस्टेक है? इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 प्रिंट के बाद ब्रैकेट नहीं डला है और ये 3+ वर्जन है. 2+ वर्जन में बिना ब्रैकेट के रन होता था, 3+ वर्जन में ब्रैकेट डालना जरूरी. तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट मिसिंग होगा तो ये सिंटैक्स एरर लिखा भी हुआ है. मिसिंग पैरेंथेसिस मतलब ये राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं. इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट दिस? सो इट इज ट्राइंग टू करेक्ट ऑल्सो. अ सिंटैक्स एरर डिस्प्लेड इन पाइथन शेल मोड. देखो, शेल मोड में जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वहीं पे ये पूरा डिस्प्ले होगा कि किस टाइप का एरर है, कैसे उसको रिमूव करना है, पूरा डिटेल. So a syntax error is reported by the Python interpreter giving a brief explanation about the error and a suggestion to rectify it. Similarly, when a syntax error is encountered while running a program in script mode as shown in figure, a dialog box specifying the name of the error. तो यहाँ पे एक dialog box आ जाएगा जिसमें क्या error है वो डिस्प्ले हो रहा है. जैसे इसे missing parenthesis means round bracket missing है, तो specifying the name of the error
एंड a small description about the error is displayed. ठीक है, तो ये एरर आ गया. Now next is exceptions. Even if a statement or expression is syntactically correct, there might arise an error during its execution. Execution के समय अगर कोई error होता है, ठीक है, हो सकता है syntax मैंने टाइपिंग पूरा सही किया है लेकिन एग्जीक्यूशन के समय एरर डिस्प्ले हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, डिवीजन बाय जीरो एंड सो ऑन. तो ये याद रखना कि एग्जीक्यूशन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन या रन टाइम एरर कौन कौन से होते हैं. ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड डिवीजन बाय जीरो, ये नॉर्मली हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में डिवीजन बाय जीरो को. Such types of errors might disrupt the normal execution of the program and are called exceptions. An exception is a Python object that represents an error. When an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have been raised. Such an exception needs to be handled by the programmer so that the program does not terminate abnormally. मतलब टर्मिनेट एबनॉर्मली मीन्स बीच में, जैसे सपोज रेलवे का हम टिकट काटने बैठे हैं, अब हमसे कोई मिस्टेक हो गया, उसमें कोई फाइल जो नहीं एग्जिस्ट करता है डिवाइड बाय जीरो, कोई भी एक मिस्टेक हो गया, तो वहाँ पे बीच में प्रोग्राम, तो हमने इतना सारा जो डेटा अभी तक डाला उसमें वो पूरा गायब हो जाएगा. ठीक है, तो ये मिस्टेक ना हो, मीन्स ये एबनॉर्मली वो बंद ना हो जाए प्रोग्राम, इसके लिए हमको एक्सेप्शंस यूज करने हैं. एक्सेप्ट. Therefore, while designing a program, a programmer may anticipate such erroneous situations that may arise during its execution. ठीक है, उसको हैंडल करने के टूल्स यूज करेंगे and can address them by including appropriate code to handle that exception. It is to be noted that syntax error shown at figure this is also an exception. जो पहले ब्रैकेट नहीं था वो भी एक एरर है. But all other exceptions are generated when a program is syntactically correct. दूसरे जो other than syntax error में ही खाली syntax error होता है, बाकी जो दूसरे errors होते हैं उसमें प्रोग्राम सही रहता है. ठीक है, प्रोग्राम is syntactically correct, लेकिन उसके बाद रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, जो दूसरे टाइप के एरर्स होते हैं वो. Built-in exceptions. Commonly occurring exceptions are usually defined in the compiler interpreter. These are called built-in exceptions. Python standard library is an extensive collection of built-in exceptions that deals with the commonly occurring errors, exceptions, by providing the standardized solutions for such errors. On the occurrence of any built-in exception, the appropriate exception handler code is executed which displays the reason along with the raised exception name. नीचे नाम लिखा रहेगा कि किस टाइप का एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन. The programmer then has to take appropriate action to handle it. Some of the common occurring built-in exceptions that can be raised in Python are explained in table 1.1. तो syntax error, value error, IO errors, ठीक है, कीबोर्ड इंटरप्ट, इम्पोर्ट एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, जीरो डिवाइड एरर, इंडेक्स एरर, नेम एरर, इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर, ओवरफ्लो एरर. अब प्रोग्राम तुम्हारा जो एमसीक्यू है उसमें क्या किया है, उन्होंने एक एरर दे दिया है, एक प्रोग्राम दे दिया है, एरनियस प्रोग्राम, और पूछा है कि इसमें से कौन सा डिस्प्ले करेगा. ऑप्शन में उन्होंने इंडेक्स दे दिया, नेम एरर दे दिया, टाइप एरर दे दिया, वैल्यू एरर दे दिया. अब तुमको एरर को देख के पहचानना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा. ठीक है, तो उसके लिए पहले इन एरर्स को समझना पड़ेगा. सिंटैक्स एरर, इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड. जब सिंटैक्स में जो भी रूल ऑफ राइटिंग द कोड उसमें मिस्टेक होगा तो सिंटैक्स एरर होगा. Value error, it is raised when a built-in method or operations receives an argument that has the right data type but mismatched or inappropriate values. अगर वैल्यू गलत है तो फिर उसमें वैल्यू एरर आएगा.
ठीक है, इसको हम लोग एक बार प्रोग्रामिंग में हम लोग देख लेंगे कि वैल्यू किस में वैल्यू एरर आएगा, किस में नेम एरर आएगा, किस में टाइप एरर आएगा। मतलब अब हम लोग जानबूझ के गलत प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। और इसमें सपोज x इक्वल्स टू वाई मैंने लिखा, तो y को मैंने वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे चेक किया कि इफ, अब चेकिंग में मैंने मिस्टेक किया तो वो तो फॉल्स दिखा देगा, चेकिंग में मिस्टेक करने में फॉल्स दिखा देगा। डेटा टाइप हमने गलत दिया, टाइप एरर मीन्स टाइप इज रॉन्ग, डेटा टाइप इज रॉन्ग। तो इसमें हम लोग सपोज हम इसमें प्रिंट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग करते हैं प्लस एक नंबर देते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत है ये। तो इसमें देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है। इसमें टाइप एरर, देखो डेटा टाइप गलत हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए था, ठीक है। तो नेम एरर मीन्स क्वेश्चन में ये दिया रहेगा क्या टाइप का एरर है, तुमको लिखना है नेम एरर। ऑप्शन चारों दिए रहेंगे, तुमको सिलेक्ट करना है नेम एरर। फिर ये दिया रहेगा प्रिंट s+2, तो यहाँ पे डेटा टाइप एरर दिया दोगे, ठीक है। उसके बाद इंडेंटेशन एरर कैसे देते हैं, सपोज 2 = 3 : अब हम बिना इंडेंट किए हम लिखेंगे कुछ प्रिंट, ये इंडेंटेशन एरर हो जाएगा, ठीक है, इंडेंटेशन एरर हो जाएगा। तो तुमको प्रोग्राम क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शन विच टाइप ऑफ एरर इट इज। देन नेक्स्ट इज योर syntax error. You all know syntax error means if 2 = 3, then it will be syntax error, invalid syntax. Clear? Then next is, तो अभी आज यहाँ पे हमने अभी 4 टाइप के एरर्स देख लिए हैं, दैट इज नेम एरर, नेम y इज नॉट डिफाइंड, अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो तो नेम एरर आ गया। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, एक इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, वहां पे टाइप एरर आ गया। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, इंडेंटेड मीन्स इंडेंटेशन होना, ये इफ का ब्लॉक है तो इंडेंटेशन एरर आ गया। नेक्स्ट इनवैलिड सिंटैक्स, पूरा सिंटैक्स मैंने गलत लिखा है तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट 5/0 डालूंगी तो रन टाइम एरर आना चाहिए, देखते हैं क्या लिख के आता है। 0 डिवीजन एरर, ओके, ठीक है। इसमें एक्चुअली यही एरर्स दिखाएंगे जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, 0 डिवीजन एरर, ठीक है। तो जहाँ पे डिवीजन बाय 0, तो यही एरर्स जो है नॉर्मली डिस्प्ले होगा। आगे समझ में, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू हैव टू सर्च विच ऑप्शन इट इज। नेक्स्ट, अच्छा, इनएप्रोप्रिएट वैल्यू गलत है, सपोज एक स्ट्रिंग को हम, अच्छा वैल्यू गलत है, इसको भी देख लेते हैं। इनएप्रोप्रिएट वैल्यू में सपोज हम नॉर्मली किसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे प्रिंट इंट ऑफ, यहाँ पे अगर मैं कोट्स में 5 लिखूं तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट इंट ऑफ, इंटीजर में कन्वर्ट करने को मैं सपोज यहाँ पे मैंने डॉग लिखा, ठीक है, तो ये वैल्यू एरर हो गया। आगे समझ में, तो वैल्यू एरर में इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 मीन्स ये डॉग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा, 5 को तो इसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे 5, तो वैल्यू मैंने गलत दिया है तो वैल्यू एरर आ गया, ठीक है। ऐसे ही सारे जितने एरर्स हैं इसको एक एक करके हम लोग, वैल्यू में एरर आ जाएगा तो वैल्यू एरर हो जाएगा। It is raised when the file specified in the program statement cannot be opened. फाइल अगर ओपन नहीं हो रहा है तो फिर IO एरर आ जाएगा।
Keyboard interrupt, it is raised when the user accidentally hits the delete or escape key while executing a program, due to which the normal flow of the program is interrupted. तो कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया, तुमने कीबोर्ड से प्रोग्राम रन हो रहा था या फ्लो जो भी काम कर रहा था उसमें डिलीट या एस्केप कर दिया. नेक्स्ट, इम्पोर्ट एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड. ठीक है, तो इम्पोर्ट हमने कुछ किया नहीं है, सपोर्ट इम्पोर्ट मैथ नहीं किया और मैं सील को यूज कर रही हूँ, तो उसमें वो इम्पोर्ट एरर दिखा है. नेक्स्ट, एंड ऑफ फाइल एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट. फाइल एंड हो गया है और उसने कुछ भी रीड नहीं किया, तो उसमें एंड ऑफ फाइल एरर. जीरो डिवीजन एरर, जब हम डिवाइड बाय जीरो करते हैं इनफाइनाइट हो जाता है. इट इज रेज्ड when denominator in a division operation is zero. ठीक है, divide by zero. Next, index error, it is raised when the index or subscript in the sequence is out of range. ये हमेशा आता है एग्जाम में. index error का मतलब है कि सपोज एक लिस्ट है जिसमें 5 वैल्यूज है, l इक्वल्स टू 2 3 4, और मैं यहाँ पे प्रिंट L of 9. अब 9 उसके पास है ही नहीं, तो वो इंडेक्स एरर दिखाएगा. दिस इज योर इंडेक्स एरर. आगे समझ में, तुमको क्वेश्चन पेपर में ये दिया रहेगा और ऑप्शन में नेम एरर, सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर. तो तुमको पहचानना है कि 9 इंडेक्स तो है ही नहीं एल के पास. एल के पास तो 0 1 2 खाली 3 ही वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगा. ठीक है, तुमको ये पहचानना पड़ेगा प्रोग्राम में कि कौन सा वैल्यू एरर है, कौन सा इंडेक्स एरर है, कौन सा नेम एरर है. दिस नीड्स प्रैक्टिस. इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल गेट कंफ्यूज्ड. जैसे हम लोग भी फर्स्ट टाइम जब करते थे कंफ्यूजन होता था, लेकिन एक बार करने लगोगे तो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. नेक्स्ट, इंडेक्स एरर हो गया. नेम एरर, it is raised when a local or global variable name is not defined. Suppose you are using a variable name which is not defined, then name error will be there. Indentation error, suppose even local और global का भी देख लो तुम name error में, कि suppose मैंने एक function के अंदर एक name use किया है और मैं बाहर print करा रही हूँ. Suppose def a, इसमें मैंने एक variable को use किया x equals to 6, और बाहर आके मैंने प्रिंट किया प्रिंट x. ठीक है, तो इसमें भी ये नेम एरर हो जाता है क्योंकि ये ग्लोबल इसके पास नहीं है. अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करती तो ये एरर नहीं. अच्छा, इन एरर को हटाने का भी मेथड आना चाहिए. कैसे इन एरर्स को हटाते हैं? अब अगर इसमें मैं ग्लोबल कीवर्ड यूज करती, इसको ग्लोबल कर देती, ग्लोबल एक्स, तो एरर नहीं आता. क्या हुआ? एक्स, ग्लोबल एक्स किया हमने, ओके, फंक्शन को कॉल नहीं किया. फंक्शन जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक तो वो रन होगा ही नहीं. फंक्शन को पहले कॉल करना है, उसके बाद अब आउटपुट आ गया. ठीक है, फंक्शन कॉल करने पे ही तुम्हारा एक्स ग्लोबल हुआ, उसका वैल्यू आया, तभी वो प्रिंट एक्स करेगा. लेकिन मैं अगर यहाँ से ग्लोबल एक्स को हटा दूं तो एरर आ जाएगा. इसने इसको ले लिया, एक्स इक्वल्स टू 6 को बाहर भी प्रिंट कर दिया विदाउट यूजिंग. ये इंटरनली ये हैंडल कर रहा है इसको. ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब तक हम मेंशन नहीं करेंगे ग्लोबल एक्स, तब तक ये ग्लोबल होगा नहीं. प्रिंट एक्स, वी आर यूजिंग अ लोकल वैल्यू आउटसाइड ग्लोबली. ओके, हियर इट इज नॉट शोइंग एरर. Then here if you change the index 0 1 2 then it will not show error. तो कैसे एरर को हटाना है ये भी पता होना चाहिए. यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू यूज करेंगे कोट्स में तो फिर एरर नहीं शो करेगा. यहाँ पे 0 के जगह पे कुछ और नंबर डालना है, ये तो पता है, डबल इक्वल्स टू कोलन और उसका ब्लॉक होना है.
देन इसमें इंडेंटेशन होना है। तो एरर्स को कैसे हटाया जाएगा, ये सिंगल कोट्स में होना है। 2 को सिंगल कोट्स में डालोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, तो यहाँ पे S2 प्रिंट करके वो दिखा देगा। नेक्स्ट इसमें y के पास एक वैल्यू देना था, तो शुरू में हम या तो y इक्वल्स टू 5 या यहाँ पे y की जगह पे 5 लिख देंगे। तो कैसे, कौन सा एरर है फर्स्ट थिंग, एंड हाउ टू रिमूव द एरर, दैट ऑल्सो यू शुड नो। So next is your indentation error. This you have done. Type error, it is raised when an operator is supplied with a value of incorrect data type. Clear? Data type, just now you have seen that a string we wanted to add with a numeric value, so it is a type error. So जहाँ पे हम operator में जो आना चाहिए, जैसे स्टार ऑपरेटर में अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग दे रहे हो, राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों को स्ट्रिंग दोगे तो टाइप एरर दिखेगा। नेक्स्ट, ओवरफ्लो एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में एक लिमिट होता है, उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो ये ओवरफ्लो एरर दिखाएगा। नाउ हियर यू कैन सी ऑल द डिफरेंट एरर्स। डिवाइड बाय 0 आएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर सिलेक्ट करोगे। अगर var प्लस 40 आ जाएगा तो यहाँ पे नेम एरर आ जाएगा, क्योंकि var को मैंने इनिशियली कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए नेम एरर आ जाएगा। जब हम एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग से प्लस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, a programmer can also create custom exceptions to suit one's requirements. These are called user defined exceptions. जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम जानबूझ के हम error या exceptions create कर सकते हैं। We will learn how to handle exceptions in the next section. So how to handle the exception? Raising exceptions. Each time an error is detected in a program, the Python interpreter raises, throws an exception. Exception handlers are designed to execute when a specific exception is raised. जानबूझ के exception raise करके उसके बाद उसको कैसे handle करना है। जैसे enter your name, यूजर ने 1 2 3 दिया, तो उसके एक्सेप्ट में हमने लिखा कि can enter only alphabets in your name, cannot enter numeric values, ऐसे करके। तो जानबूझ के हमने exception हम handling tool उसमें यूज कर सकते हैं। Next, programmers can also forcefully raise exceptions in a program using the raise and assert statement. Once an exception is raised, no further statement in the current block of code is executed. So raising an exception involves interrupting the normal flow execution of program and jumping to that part of the program that is exception handler code, which is written to handle such exceptional situations. तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे जस्ट सपोज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा वो सीधे एक्सेप्शन हैंडलर कोड होता है, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करना है, तो ये जंप करके वहाँ पहुँच जाता है। तो ये हम इंटेंशनली भी कर सकते हैं। The raise statement can be used to throw an exception. The syntax of raise statement is raise exception name and the argument. So it is optional. तो हम raise error को हम raise exception name use करके हम खुद अपना user define या programmer के through करवा सकते हैं। The argument is generally a string that is displayed when the exception is raised. For example, when an exception is raised as shown in figure this, the message oops an exception has occurred is displayed along with a brief description of the error. तो यहाँ पे हमने क्या किया, raise exception, इसमें ब्रैकेट पे हमने एक मैसेज डाल दिया। तो जहाँ पे एरर आएगा, मीन्स जब प्रोग्राम रन होगा तो वो उस वहाँ पे क्या करेगा, ये मैसेज को डिस्प्ले करवा देगा, जो मैसेज हमने पैरेंथेसिस में डाला। The error detected may be a built-in exception or may be a user-defined one. Consider the example given in figure this, that uses the raise statement to raise a built-in exception called index error.
In this case, the user has only raised the exception but has not displayed any error message explicitly. जैसे यहाँ पे एरर मैसेज को एक्सप्लिसिटली दिखाया गया है, सपोज हम एरर मैसेज को नहीं दिखा रहे हैं एक्सप्लिसिटली. इन फिगर 1.6 since the value of variable length is greater than the length of the list numbers an index error exception will be raised. ये अभी हमने किया, लिस्ट में जितने वैल्यूज हैं उसके बाहर का इंडेक्स डाल देंगे तो इंडेक्स एरर आएगा. द स्टेटमेंट फॉलोइंग द रेज स्टेटमेंट will not be executed, so the message no execution will not be displayed in this case. ये दिया हुआ है यहाँ पे. इंडेक्स एरर जो है वो आ रहा है, तो इसके बाद जो हमने ये लिखा है नो एग्जीक्यूशन, ये नहीं प्रिंट होगा, सीधे यहाँ पे इंडेक्स एरर आ जाएगा. ठीक है, चलो. As we can see in figure, in addition to the error message displayed, Python also displays a stack traceback. This is a structured block of text that contains information about the sequence of function calls that have been made in the branch of execution of code in which the exception was raised. In figure this, the error has been encountered in the most recently called function that has been executed. Now, in this already you have understood, index error पहले ही हो गया, तो इसके बाद मैंने print no execution दिया, तो no execution उसने print नहीं किया. Now, assert statement. So, in this chapter, assert statement you will have, then assertion errors are there, then handling exceptions, need for exception handling, why it is needed, process of handling exceptions. Now all the three errors, syntax error, runtime error and logical error, this you have to understand how to handle all these errors. Now throwing exceptions, that means we are creating these. Now how and what are the sequences? Catching exceptions, I'm just first showing you what all topics are there, then we will continue. Now try except block. Now in try you will write your complete program and all the different types of errors which may occur. In except you will write all the handling tools, that is all the error handling tools. जैसे मैंने पूरे प्रोग्राम को, हमारे प्रोजेक्ट को उठा के मैंने ट्राई में डाल दिया. ठीक है, अब यूजर कहीं पे इनपुट में अगर सपोज y से डिवाइड हो रहा है, y का वैल्यू गलती से कहीं पे 0 डाल दे यूजर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि जब भी 0 डिवीजन एरर आता है तब क्या प्रिंट होगा, डिनोमिनेटर एज 0 इज नॉट अलाउड. मीन्स बीच में वो बाहर नहीं आएगा, वो कंटिन्यू करेगा ये मैसेज दिखाने के बाद. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जो एरर्स तुम्हारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, नेम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, 0 डिवीजन एरर, सिंटैक्स एरर, तुम अपने प्रोजेक्ट को अगर पूरे ट्राई ब्लॉक में डाल रहे हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट में क्या क्या एरर आ सकते हैं उसको लिख के, जैसे सिंटैक्स एरर में तुमको क्या मैसेज डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. ऑलरेडी तुम जुपिटर या जिसमें भी कर रहे हो नीचे मैसेज आ जा रहा है कि किस टाइप का एरर है. फिर भी अगर चाहो तो खुद से भी ये एक्सेप्ट मीन्स एरर हैंडलिंग टूल्स इसको यूज़ कर सकते हो कि क्या क्या नॉर्मली यूज़र से मिस्टेक्स होते हैं और उसमें तुम अपना ये एक मैसेज डिस्प्ले करवा दोगे कि क्या एरर हो रहा है. जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कभी कभी मुश्किल हो जाता है तो उसमें ये 0 डिवीजन एरर, नेम एरर, तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको. अगर वैल्यू एरर आएगा तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, और नहीं तो एक्सेप्ट में तो यहाँ पे ट्राई के साथ एक्सेप्ट ही आता है. अभी जो एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या हम ट्राई के साथ एक्सेप्ट के साथ फाइनली यूज कर सकते हैं? नहीं. एल्स यूज कर सकते हैं? हाँ, एल्स यूज कर सकते हैं. तो ये जो ट्राई एक्सेप्ट का पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स, हम ट्राई के साथ एक्सेप्ट और एल्स यूज कर सकते हैं. ये ऑप्शन में था, क्वेश्चन में ये था कि एल्स को हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं.
तो हाँ, हम यूज कर सकते हैं। जब सारे एक्सेप्ट जिसमें एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तब हम एल्स करके हम फाइनली कोई एक मैसेज दिखा देंगे, ताकि अगर एक भी नहीं एग्जीक्यूट हो तो कम से कम वो एल्स वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। अच्छा, फाइनली क्लॉज आया है उस पेपर में, तो फाइनली क्लॉज को देख लेते हैं। द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज. The statements inside the finally block are always executed regardless of whether an exception has occurred in the try block or not. It is a common practice to use finally clause while working with files to ensure that the file object is closed. If used, finally should always be placed at the end of try clause after all except blocks and the else block. पूरा काम हो जाने के बाद फाइनली सपोज मेरे को जो ओपन किया है फाइल उसको क्लोज करना है, तो लास्ट में मेरे को क्लोज करने के लिए मैं पूरा काम हो जाने के बाद सारे एक्सेप्ट, एरर हैंडलिंग, एल्स, लास्ट में फाइनली लिख के उसके बाद हम जो भी सपोज क्लोज करना है फाइल को तो क्लोज कर सकते। देखो यहाँ पे पूरा दिख रहा है। ट्राई में प्रोग्राम है, तुम्हारा प्रोजेक्ट है। एक्सेप्ट में जितने भी एरर हैंडलिंग है सारे तुमने डाल दिए, तुम्हारे उसमें जो जो एरर्स हो सकते हैं यूजर से। एल्स में अगर उसमें से एक भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो डाल दोगे। और फाइनली में ओवर एंड आउट मीन्स, ये फाइनली मीन्स जब कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट, सारे सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, आउटपुट में भी अगर ये आ गया तो इसको ध्यान देना है तुमको कि अगर फाइनली करके लिखा है तो वो हर आउटपुट में लास्ट में डिस्प्ले होगा। ठीक है। रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ फाइनली क्लॉज, फाइनली क्लॉज से हमको हम रिकवर करके हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ओवर एंड आउट करके फिर उन्होंने एरर दिखाया है। प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक आया, फिर एंटर द डिनोमिनेटर नहीं डाला, ओवर एंड आउट करके फिर मैसेज डिस्प्ले कर दिया। सो दिस वाज योर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। मेनली इन क्वेश्चन पेपर यू विल गेट दीज ऑप्शंस। ये ऑप्शन में दिया रहेगा 4, तुमको इसमें सर्च करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, उसके बाद वो जो मैंने बोला ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, वो भी आएगा।